the most important PDF we were waiting for the discussion, that economic MCQ 450 for the prelims 2025 has been released by the Vivek sir. And we know that this PDF importance, every aspirants who are going to give the examination this year or from the 2023-24, this PDF has great importance for the economies, because it thoroughly conduct all the concept, cover all the concept, and also the current affair, economic survey, budget, all these things are covered in this PDF. Okay, so total we know that it cover the 450 MCQ, and in 450 MCQ all economic concept are covered in this PDF, and budget, economic survey, and current update is also included in this. Okay, and it is very important for the UPSC prelims, and especially designed for the UPSC prelims, and it is released by the Vivek sir every year. And one more thing is that this year this PDF has been released in the book form, so you can visit my description and you can purchase the book from the Amazon or Flipkart or nearest your bookshop. Okay, so total 450 MCQ are in there, and all single MCQ are very important for the UPSC prelims. And I don't think it's need to tell you that what economy and how much economy is important for our prelims. You know very well that some year 20 question, up to 20 question, 24 question UPSC has been asked from the economy. And if you follow the good sources, you can solve the economy around 15 to 80 question. That is not less. If there is a 20 question and you can solve the 18 or 17 question, it is much more accuracy than other subject. Okay, so polity and economy, these two are the most important subject if you want to clear the prelims. You cannot take the risk in these two subjects. You have to be very strong in these two subjects if you want to and if you wish to clear the UPSC prelims. Okay, if you even solve the economy 50 question, it is around 30 marks. Okay, and this 30 marks means around, if there is a 100 mark or 100 cutoff for the general, so from the one subject you can score 30 marks, and it is big deal. Seriously, it's a very big deal. If you cover and if you can solve less than 30 marks from the economy, then it is going to much problem for you to clear the prelims. Okay, so do not avoid the economy, as polity has importance in the UPSC prelims, that much economy is also has. Okay, so you need to give the both subject to equal times and equal consideration. Okay, so this is designed for the especially for the UPSC prelims 2025, whoever is going to attempt. My personal choice that you need to solve this. Okay, once you need to know, there is nothing like that if you your question when you are attempting it is going to wrong, no issue, because the concept as the sir has covered, it is so hard, and it's these MCQs are crafted, or you can say crafted very well. Actually in one question you can revise your 3 to 4 concept in one question. So this 450 MCQ, not just a 450 MCQ, it has important more than 1000 MCQ. Okay, that's why student every year waiting for that. They used to wait this PDF to released. Okay, and one more thing is that after solving these 450 MCQ, I don't think you need to solve any subject related test series for the prelims. You just need to revise these MCQ multiple times and your basic source. Do not avoid basic source. If you are taking risk in your basic source, you are digging for your UPSC prelims is going to waste. So basic source and these MCQ revise multiple times, and if your luck is good, you will clear the prelims. No issue in that. Okay. So first we will see the contents or index. So we know that it covers the concept and current both holistically, and we start from the first topic, that is micro fundamentals, GDP, investment and growth. Okay, in this around 34 to 35 question, sir has covered all the concept. These 30 to 35 question is very important because these three, you can say these, yes, 1 2 3, these three are very important for the prelims, and this is also one topic, and after that you can take according to your, but these are very important for the prelims, for the concept wise, for the static concept wise, these four are very important for the prelims. Okay, so I have written something there, I will
tell you that why I have written this. You will know that. So you need not to take risk in this and problem. Okay, so let us start now. जय श्री राम. चलिए स्टार्ट करते हैं. Okay, so there is a first question is that, and the first question is about the GDP. हमने फर्स्ट टॉपिक देखा ही था माइक्रो फंडामेंटल्स, जीडीपी, इन्वेस्टमेंट, ग्रोथ. इसी से हमारा पहला सेक्शन था और उसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जीडीपी से रिलेटेड है. इट इज सेइंग दैट कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. हिंदी में बोले तो सकल घरेलू उत्पाद. ओके, ग्रॉस मीन्स क्या होता है? टोटल, कंप्लीट, फुल. डोमेस्टिक मतलब हमारे और आपके घर की केवल बात नहीं हो रही, पूरे इंडिया में जितने भी, चाहे वो डोमेस्टिक फॉर्म्स हो, चाहे हाउस होल्ड हो, चाहे एग्रीकल्चर हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे सर्विस सेक्टर हो, इन सब के द्वारा जितने भी गुड्स और सर्विस, प्रोडक्ट मीन्स प्रोडक्ट दोनों, चाहे वो गुड्स हो या सर्विस हो, उन सब का जो मॉनेटरी वैल्यू होता है वही जीडीपी होता है. ये एक लेमन टर्म में मैंने समझा दिया आपको. ठीक है, वो जितना भी प्रोड्यूस करेंगे, ये सब मिलके जितना भी प्रोड्यूस करेंगे, चाहे गुड्स या सर्विस दोनों, वो हमारा जीडीपी होगा और उसको हम मॉनेटरी वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे. जैसे अगर हम कहें कि 1 kg वेट फार्मर्स ने प्रोड्यूस किया, तो दैट विल बी कन्वर्ट इन द मॉनेटरी दैट 20 रुपीज. तो आवर जस्ट अज्यूम दैट कि देयर इज ओनली 1 फार्मर्स इन होल इंडिया एंड ही प्रोड्यूस द 1 kg वेट. तो आवर इंडिया जीडीपी वुड बी 20 रुपीज इफ द प्राइस ऑफ 1 kg इज 20 रुपीज. ओके, दैट इज द जीडीपी फाइनल गुड्स. ओके, 1 minute. Okay, so let us see the option one by one. So first option is saying that कि हमें बताना है कि जीडीपी क्या है, जीडीपी के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है. एक स्टेटमेंट सही होगा क्योंकि 1 to देखते हैं कि 1 to 4 में है कि नहीं. तब फिर ये देख लीजिए यहाँ पर ऑप्शन आप, तो 1 to 4 में तो एक भी सही हो सकता है, 2 भी सही हो सकते हैं और 3 भी स्टेटमेंट सही हो सकते हैं. लेकिन आप यहाँ पर देखेंगे तो ऑल 4 ऑप्शन तो नहीं सही है. तो एक तो 100% इनकरेक्ट है एंड मोस्टली 2 ही करेक्ट है. ठीक है, मोस्टली 2 करेक्ट है एंड एक 100% इनकरेक्ट है और मैक्सिमम जो है वो 3 करेक्ट है. ठीक है, चलिए देखते हैं. फर्स्ट इज सेइंग दैट कि जीडीपी इज द सम टोटल ऑफ डोमेस्टिक फाइनल कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर प्लस नेट ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स. ओके, तो ये कह रहे हैं कि जीडीपी टोटल कंजम्पशन है, टोटल डोमेस्टिक कंजम्पशन जो फाइनल कंजम्पशन है, एंड टोटल डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर जितना हम इन्वेस्टमेंट पे एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, प्लस नेट एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स. ठीक है, सेकेंड कह रहे हैं कि इट इज़ द सम टोटल ऑफ फाइनल डोमेस्टिक कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर प्लस एक्सपोर्ट. ठीक है, प्लस एक्सपोर्ट. फिर थर्ड इज सेइंग दैट इट इज द सम टोटल ऑफ फाइनल कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर प्लस नेट ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स. ओके, एंड फोर्थ इज सेइंग दैट कि इट इज द सम टोटल ऑफ फाइनल कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर प्लस एक्सपोर्ट. देखिए, दिस इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द कैलकुलेशन मेथड ऑफ जीडीपी. एंड टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन you have to know the calculation method of GDP, the expenditure method. So for your ease I have included this, and 1 minute I will tell you that all the methods of GDP, and if you know this already you can skip the video, but my point of view you need to go through this. It is going to revise for you and it will clear a lot of confusion here. Okay, so I will first tell you that the what is GDP, calculation method of GDP, and it will just take your 5 minutes. Okay, so I think in my point of view you need to look out that, and if you think it is going to waste your time you can skip the video and after that you can go to the first question. Okay, so let us start. So GDP, gross domestic product, in Hindi सकल घरेलू उत्पाद. The first thing you need to understand that GDP is about the resident, not about the citizens. Okay, GDP is about the resident, means in India whatever person and whatever country's citizen are there and they are producing in India, it will be called the GDP. हो सकता है कोई चाइना का आदमी हो और वो इंडिया का में रहता हो, और एक मीन्स द गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट सेइंग दैट अराउंड 180 days if you are staying in India you are resident of India irrespective of citizenship. सिटीजनशिप और रेसिडेंट में
डिफरेंस होता है। रेसिडेंट मतलब जहाँ आप बहुत ज़्यादा टाइम तक रहते हो, वो रेसिडेंट कहा जाता है। और सिटीजनशिप अलग होता है, वो आपका नागरिकता को दिखाता है कि हाँ आप इस देश के नागरिक हो, यहाँ पर आप पैदा हुए हो, यहीं पे आपका जो आपको वोट देने का अधिकार है, सब कुछ है। रेसिडेंट को वोट देने का अधिकार नहीं होता, ठीक है। रेसिडेंट किसी और कंट्री का भी हो सकता है, तो ये आप क्लियर कर रखना अपने माइंड में। सो हु एवर इज रिसाइडिंग इन इंडिया मोर देन 180 days, ही इज कॉल्ड द रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो जीडीपी इज अबाउट द रेसिडेंट। अगर एग्जाम में कहता है जीडीपी इज द टोटल वैल्यू ऑफ सिटीजन प्रोडक्शन, तो नहीं, सिटीजन्स नहीं, रेसिडेंट। ओके, तो ये पहला कॉन्सेप्ट आप क्लियर कर लेंगे। अब हम फॉर्मूला पर चलते हैं। कहते हैं कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट रिप्रेजेंट द फाइनल वैल्यू। फाइनल मीन्स नो रॉ मटेरियल। हम रॉ मटेरियल को कैलकुलेट नहीं करेंगे, हम हर चीज़ के फाइनल वैल्यू को इन मॉनेटरी वैल्यू में, मॉनेटरी टर्म्स में रिप्रेजेंट करेंगे। तो जीडीपी इज द रिप्रेजेंट ऑफ द फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, या मार्केट वैल्यू भी आप कह सकते हैं इसको। इज द रिप्रेजेंट ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन अ कंट्रीज बॉर्डर्स, या फिर आप इसको कह सकते हैं डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ स्पेसिफिक कंट्री टू द स्पेसिफिक पीरियड, जो यूजुअली 1 ईयर का होता है। हम जीडीपी कितने वो टर्म्स पे कवर करते हैं, 1 ईयर में कितना प्रोडक्शन हुआ उसी को जीडीपी कहते हैं। 1 ईयर का टाइम पीरियड लेते हैं, ठीक है। तो इट इज अ फाइनल गुड्स और मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया एंड प्रोड्यूस्ड बाय द रेसिडेंट, not only the citizens. Okay, and usually we take the 1 year time period. Okay, so we not include the raw material. First this thing is now clear. Now the calculation of GDP, how we calculate the GDP. देखिए, हर ऐसा तो हो नहीं सकता कि मतलब ऐसे भगवान आकर बता दे कि हाँ तुम्हारे इतना बड़ा इंडिया है और इन होल इंडिया दिस मच प्रोडक्ट हैज बीन प्रोड्यूस। यू हैव टू फाइंड द सम मेथड to calculate the GDP, because you have a connection with the world. There is export, some product, another country's product is coming in your India, in your country, and your product is going to another country. So you have to find the some measure to calculate the GDP of a country. Okay, and just remember, and it's a golden rule कि GDP is the domestic territory product. The product which are produced in the domestic territory, उसी को GDP कहेंगे। Imported goods are not count in the GDP. Again, imported goods are not count under the GDP. If we will cover, tell the India GDP क्या है, we will just cover the whatever production happened in the within the territory of India. Okay, whatever goods enter from the outside in India, they will not, and they are not a part of GDP. Okay, okay. So there is a 3 methods of calculation of GDP. First we call the production method, second is a income method, and third is a expenditure method. Our question is based on the expenditure method. So let us start now. Production method. What about the production? Production means output method, या फिर आप कह सकते हैं value added method. In each level how much value added, that is the GDP. Okay, let us understand in the layman terms. Like farmers have produced wheat, okay, and just assume that ki farmer have no means there is no intermediate goods for the production of wheat. So the value added by the farmers is just think that ki farmer have produced the wheat of 30 rupees. Okay, this wheat are 30 rupees wheat were produced by the farmers. Now this wheat were buy by the biscuit company or Parle G, and they converted these wheat into biscuit of 60 rupees. Okay, now they convert this wheat in 60 rupees. Okay, so what is the GDP? What is the GDP? You cannot say that 30 plus 60 is a GDP. This is 90. 90 is not a GDP, because when you the company have converted the wheat into biscuit, they have buy there, and there is a intermediate goods which is they have already covered. That means this 30 rupees wheat is also included in this 60. So the value added in this 60 rupees is only 30 rupees. Okay, have you got my point? I hope you are got. Just one formula. The value added, what is a value added means output minus input. Then output how much? 60 rupees. And input how much they have they need to input the 30 rupees rice. So 30. So how much value added has happened? Just 30 rupees.
So in this second label only 30 rupees value added and first label is 30 rupees value added. So this is the GDP, we will call that 60 rupees. We call the GDP only 60 rupees. Okay. Okay, or either you can ignore this totally and you can say the final product which are created by the including all the intermediate product and the price of final product is 60 rupees and this is the GDP. So we will not cover the primary level. Okay, so this is the value added method, means each level we just calculate that how much value added by that level and the all value added be combined once and we call that this is the GDP. We minus all the intermediate goods. Okay, again now understand that कि फार्मर्स है एक, ठीक है, वो 100 रुपये का वेट प्रोड्यूस करता है और वो कोई रॉ मटेरियल यूज नहीं करता, वो अपने घर का सीड यूज करता है, अपना वर्कर्स मतलब अपना लेबर देता है, उसकी खुद की लैंड है, ये सब मतलब अज्यूम करके चलो समझने के लिए, खुद की लैंड है, खुद का वाटर है, सब कुछ, और वो 100 रुपये का वैल्यू ऐड करके या 100 रुपये का प्रोडक्ट बनाकर रेडी करता है जो कि वेट है 100 रुपये का, ठीक है। फिर एक बेकरी वाला है, उसने 50 रुपीज़ का, इसका 50 रुपीज़ का व्हीट खरीद लिया, ठीक है, और उस 50 रुपये का ओनली, यहाँ पर मानिए कि ओनली 50 रुपये की व्हीट से उस बेकरी वाले ने ब्रेड बना लिया, ठीक है, और वो ब्रेड का प्राइस बोला कि 200 रुपीज़। ओनली क्या यूज किया है उसने, 50 रुपये का व्हीट यूज किया और अपना वर्कर, अपना जितना भी अपना वर्क्स हो गया, अपना स्किल्स हो गया, अपना कोई प्रोडक्ट यूज करना है तो यूज किया है, और कोई इंटरमीडिएट गुड्स नहीं लिया है, एज्यूम कीजिए ऐसा, और उसने कहा कि दिस प्रोडक्ट वैल्यू इज 200, नाउ द GDP इज व्हाट, सो वी विल से दैट कि दिस 200 इज आल्सो इंक्लूड द इंटरमीडिएट गुड्स व्हिच आर 50. Okay, so we will minus that intermediate goods and value added we only told that ki 150 is only the total value added is only 150. So the second stage value added is only 150 and one more thing, and the first stage how much the product has been produced, 100 rupees. So 150 plus 100 the total GDP would be 250. But we cannot say that कि the total GDP is 200 is second level and 100 is first level, ये wrong हो जाएगा, क्योंकि 200 में 50 रुपये का पहले का सामान ऐड है, तो हम उसको 2 बार काउंट नहीं कर सकते ना, अगर हम यहाँ पर 100 ये लगाकर 200 ये लगाकर तो ये 50 2 बार काउंट हो जाएगा, फिर तो गलत आ जाएगा, फिर तो एरर हो जाएगा GDP में, ठीक है। तो ये हो गया हमारा वैल्यू एडेड या ग्रॉस वैल्यू एडेड मेथड ऑफ GDP काउंटेशन या कैलकुलेशन। ओके, नाउ वी विल गो थ्रू द एक्सपेंडिचर मेथड, इसी पे हमारा वो क्वेश्चन डिपेंड है, तो थोड़ा ध्यान देकर देखिएगा, आपको समझ में आएगा, इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके ओके, तो एक्सपेंडिचर आप मानिए कि एक फार्म से यहाँ पर, ठीक है, और इसने 50 बोटल्स ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड बाय दैट फार्म्स, ओके, दैट फार्म हैज प्रोड्यूस द 50 बोटल ऑफ वाटर्स, नाउ दिस 50 बोटल वाटर्स कोई ना कोई तो खरीदेगा, हो सकता है कि दिस कैन बी बाय द हाउस होल्ड, सम ऑफ द बोटल कैन बी बाय द फार्म्स इटसेल्फ, okay, for their workers, for their families, direct families, or for the use of in other material production, and some bottle can also be used by the government, okay, can be used 1 minute, okay, and some bottles can be also used by the for the export and they can be used by the foreigners, यही हो सकता है, इतने ही पॉसिबिलिटीज है, इसके ज़्यादा तो पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती कि हाँ कौन कौन खरीद सकता है, इतने ही लोग खरीद सकते हैं, ठीक है। तो व्हाट एवर गुड्स in any domestic territory is produced by, there is someone who are buying that, okay, and that is the expenditure method of GDP. Okay, just assume that I am giving you hypothesis कि if I will tell that कि these 50 bottle price is 10 rupees, now the 500, okay, 500 is GDP, but we are not counting through these things, this is, if we will count through this thing it will become the gross value added या total market, but we are what are doing that, we are doing that ki who have been, who what are the person who have buy that product, we will like household has buy that 20 bottles, then farms has buy that 10 bottles and government has buy that 5 bottles, okay, and rest is buy by that, so we will calculate all of them and multiply to 10 and we tell that ki this is matches the production has happened in the GDP, okay, this is the expenditure method। तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि कोई ना कोई तो स्पेंड करेगा ही उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए, चाहे वो इंडिया में हो या अब्रॉड हो, ओके, सो दिस मनी स्पेंड बाय द गुड्स एंड सर्विसेज एनीवन
एंड दिस इज आल्सो कॉल्ड द कंजम्पशन मेथड। कोई ना कोई तो कंज्यूम करता ही करता है, ठीक है। सो नाउ देयर इज अ फॉर्मूला, व्हाट वी कॉल दैट फॉर्मूलाज, ठीक है। सो जीडीपी एंड एक्सपेंडिचर मेथड का फॉर्मूला आपको याद कर लेना है पूरी तरीके से, CIG प्लस एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। आप ये बताओ यहाँ पर हम इंपोर्ट को माइनस क्यों करें, क्योंकि इंपोर्ट वाला गुड्स हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी में थोड़ी ना पैदा हुआ है, इट्स नॉट प्रोड्यूस इन आवर डोमेस्टिक टेरिटरी, एंड इफ इट इज नॉट प्रोड्यूस इन आवर डोमेस्टिक टेरिटरी इट इज नॉट इज अ पार्ट ऑफ आवर जीडीपी, it is neither a part of our GDP, and I will tell you later that it is neither the part of our national product and net national product and gross national product, but currently you need to focus these things. So I told you this, the consumption, if something has been produced, so who are the personality and who are the you can say stakeholder which are going to consume that. So first is consumption expenditure, you can see that कि household, you can calculate कि household उस पर उस goods और service को खरीद सकते हैं। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, फार्म्स जो है इन्वेस्टमेंट करेगा अपने कैपिटल के लिए, हो सकता है कि ट्रैक्टर प्रोड्यूस किया गया, हो सकता है कोई बिस्किट एंड पार्ले जी में बनाने वाली, कोको कोला बनाने वाली मशीनरी समझते हो ना, मशीन, या कोई आप कैसे तो फ्रिज हो गया, एसी हो गया, तो ये सब कंपनी के इन्वेस्टमेंट ना। अगर ऐसा कोई कैपिटल गुड्स होता है जिसका यूज कर कंज्यूमरिस्ट गुड्स या कंजम्पशन गुड्स क्रिएट किया जा सके, वो सारी मशीनरी कैपिटल गुड्स में आती हैं। तो फर्म्स क्या करता है, फर्म्स का जो कैपिटल गुड बाय करता है फर्म्स, उसको हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं, तो वो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर का पार्ट होता है फर्म्स के। तो फर्म्स ने जितना एक्सपेंडिचर इन्वेस्टमेंट किया, and government will also buy some goods and services for what, for the giving the poor, for you know that for giving the and distributing the poor, जैसे Food Corporation of India is a government entity and it's buy the product on the behalf of government, so this is called the government expenditure, okay. And why will we deduct the import and export? Why? Because some goods and services which are produced in India, they are exported to outside and consumed by the foreigner, so they are also produced in India, so they will covered in that, okay. And why we have minus import? Because each level we have also, means like just assume that कि you are the person, I am the person, okay. So जब हम कंज्यूम करते हैं कोई गुड्स, हो सकता है कि मैं जो टी शर्ट पहना हूँ वो इंडियन मेड हो, जो मैं फ़ोन चला रहा हूँ रेडमी हो, रियलमी हो, वीवो हो, तो वो चाइना या एप्पल का है तो अमेरिकन है। तो हमें इंपोर्टेड गुड्स तो नहीं कवर करना है, लेकिन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में हम हाउस होल्ड का जब कंजम्पशन करते हैं, कंजम्पशन को चेक करने जाएंगे तो हाउस होल्ड क्या बोलेगा कि हाँ भाई ये प्रोडक्ट मेरे पास है, उसको इससे क्या मतलब वो ऐसे थोड़ी ना, मतलब तो वो सीधा बोल देगा कि हाँ इतना इतना हमारे पास ये प्रोडक्ट है, तो कुछ उसमें से इंडिया के मेड होंगे, कुछ उसमें से इंपोर्टेड होंगे, अदर कंट्रीज के होंगे। वैसे इन्वेस्टमेंट में कुछ गुड्स हो सकता है, अंबानी जो होता है कैपिटल गुड्स होता है कि इंडिया के किसी फॉर्म्स कंपनी से ले, कुछ मशीनरी हो सकती है कि हाँ रोबोट हो गया, कुछ मशीनरी हो गई जो अमेरिका से लेकर आए अंबानी जी। तो यहाँ पर दोनों इंक्लूड है ना, डोमेस्टिक गुड्स कैपिटल गुड्स एंड इम्पोर्टेड कैपिटल गुड्स। ऐसे गवर्नमेंट हो सकता है कुछ, जैसे ऑयल हो गया, अदर गुड्स जो होती है वो गवर्नमेंट इंपोर्ट करके लाती है। कुछ गुड्स जैसे फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया व्हीट परचेस करता है वो इंडिया से करता है, तो इट्स आल्सो इंक्लूड द इम्पोर्टेड एंड एक्सपोर्टेड, मतलब डोमेस्टिक गुड्स प्लस इम्पोर्टेड गुड्स। तो भाई इम्पोर्टेड गुड्स लेकिन हमको काउंट करना ही नहीं है जीडीपी में, वो हमारे जीडीपी का पार्ट है ही नहीं, तो इसीलिए हम लास्ट में क्या करते हैं, इम्पोर्ट माइनस या एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट कर देते हैं, या आप कह सकते हो नेट एक्सपोर्ट कितना हुआ। तो हमें इम्पोर्टेड सभी लेवल पे माइनस करना है, ठीक है। I hope you have understood. So that's why we are minusing this import, because each level there is inclusion of the imported goods. इसी पे वो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन स्टेब्लिश है, इसलिए मैंने इतना देर समझाया, ठीक है। अब थर्ड मेथड भी देख लेते हैं, बहुत इजी है, इनकम मेथड। देखिए अगर इफ देयर इज एनी गुड्स प्रोड्यूस बाय द कंपनी लाइक वन ट्रैक्टर ओके, जो प्लोइंग करता है खेत को, इफ वन गुड्स इज प्रोड्यूस बाय द कंपनी द ट्रैक्टर, सो देयर इज अ पर्सन who have earned from that, okay. So there is a person who have labor, given the labor and they get the rent. There is also a stakeholder of land, जिनको रेंट मिला होगा, कुछ कैपिटल लगा होगा जिस पे इंटरेस्ट देना होगा, एंड कुछ प्रॉफिट हुए होंगे। तो हम अगर इन सबको जितने ये इनकम है इन सबको कैलकुलेट कर ले तो हमें पता चल सकता है कि वो पूरे ट्रैक्टर का कितना ज़्यादा प्राइस है या कितना फाइनल गुड्स है उस ट्रैक्टर का ना। हम सभी लेवल पर क्या कर रहे हैं, हम
जो सर्विस प्रोवाइड की गई, जो गुड्स प्रोवाइड किया गया, उसको हम कैलकुलेट कर ले रहे हैं, ठीक है। तो दिस इज द इनकम मेथड। तो इनकम इज इनकम अर्न बाय द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ईच फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हाउ मच इनकम अर्न, एंड वी विल ऐड ऑल दैट इनकम, एंड दिस विल बी द फाइनल और मार्केट गुड्स और जीडीपी। ओके, तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को पता है, लेबर होता है, लैंड होता है, कैपिटल होता है, इंटरप्रेन्योर्स होते हैं, ठीक है। दीज आर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। सो जीडीपी यहाँ पर क्या होगा, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, यहाँ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में फैक्टर कॉस्ट ही बताया जाएगा, प्लस टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। टैक्सेस और सब्सिडीज जब तक नहीं लगाएंगे, जब तक मार्केट प्राइस पे जीडीपी आएगी ही नहीं है, कोई भी गुड आ ही नहीं सकता, क्योंकि जीडीपी इज अ मार्केट वैल्यू। फिर से बता रहा हूँ, जीडीपी इज अ मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल, फाइनल मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया या डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो मार्केट, कोई भी प्रोडक्ट जब मार्केट में आता है, गवर्नमेंट उस पर टैक्स लगाती है, ठीक है। मार्केट, जैसे कोई गवर्नमेंट हो प्रोड्यूस किया किसी कंपनी ने कोई प्रोडक्ट, तो गवर्नमेंट उस पर कुछ टैक्स लगाती है, ईच लेवल पर भी टैक्स लगते हैं, कुछ ना कुछ इंटरमीडिएट गुड्स आते हैं उस पर भी टैक्स लगते हैं, ठीक है। अगर कहीं स्टील, ट्रैक्टर बनाने के लिए स्टील बाय किया किसी कंपनी ने, या टायर बाय किया, तो उस पर भी टैक्स लगते हैं, जीएसटी लगती है। तो टैक्स तो लग गए, बाद में गवर्नमेंट कहती है चलो यार तुम अच्छा काम कर रहे हो, कुछ सब्सिडी दे देते हैं जिससे कंज्यूमर को थोड़ा फायदा हो जाए, तो सब्सिडी दे देते हैं। फिर जो आता है वो होता है मार्केट वैल्यू, उसी पे सेल और बाइंग होती है मार्केट में, ठीक है। इतना आप ये समझ लीजिए, बाकी ये जो है ये मैं आपको थोड़ी देर बाद समझाऊंगा, ये दूसरे 6 नंबर क्वेश्चन का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, ये क्लियर हो जाएगा। नाउ वी विल गो फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन। आई थिंक आई हैव टेकन मच टाइम योर्स, सॉरी, आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट कि इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल इन दिस यू कैन स्किप दैट पार्ट, ओके। नाउ I had told you the expenditure method of GDP, and I hope you have not forget currently, okay। तो एक्सपेंडिचर मेथड ऑफ जीडीपी क्या है, C प्लस I प्लस G प्लस एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, दिस इज द एक्सपेंडिचर मेथड ऑफ या कंजम्पशन मेथड ऑफ जीडीपी, ओके। लेट अस कवर नाउ, लेट अस सी दैट कि व्हाट स्टेटमेंट कैन बी रॉन्ग एंड राइट इन दिस कॉन्टेक्स्ट। सो अगेन आई विल राइट C, आप भी लिखिए I प्लस G गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस एक्सपोर्ट माइनस import, this is the consumption method of GDP, okay। Let us see that, and we know that ki each level the consumption of abroad goods and domestic produced goods both are included, okay। Now see that first statement is saying that ki, oh 1 minute, I think it's deleted, again I have to write, please, I'm sorry, C plus C means consumption of household, either it's abroad imported goods or domestically produced goods, investment of firms, either it's on the domestic produced good or any goods imported from the abroad, and G government expenditure, either domestic produced goods or imported goods like oil, plus export minus import, okay। यह means import मान लेना। Now first statement is saying that it is the sum means that is gross, आप कह सकते हैं, it is the sum total of domestic final consumption. Now there is a trick. I told you कि each level there is a imported goods is also included, but the third statement is saying that कि only the total domestic final consumption, मतलब domestically produced goods is only included, या domestically produced goods पर जितना consumption हुआ है उतना ही हम इंक्लूड कर रहे हैं, इंपोर्टेड गुड्स नहीं इंक्लूड कर रहे हैं। मतलब ये यहाँ पर क्या है सर, इज सेइंग दैट कि एट इनिशियल स्टेज इज, इवन एट इनिशियल स्टेज आई माइनस द इंपोर्टेड गुड्स, मीन इस स्टेज, मतलब कंजम्पशन में क्या है, इंपोर्टेड गुड्स नहीं है तो यहीं पर हम माइनस कर देते हैं कि हाँ माइनस C माइनस M, इंपोर्टेड गुड्स जितना भी हाउस होल्ड लेवल पर जितने लोगों ने इंपोर्टेड गुड्स का कंज्यूम किया वो माइनस। ऐसे ही हर लेवल पर इन्वेस्टमेंट पे जितना इंपोर्टेड गुड्स हैं, फार्म्स ने जितना इन्वेस्ट किया है इंपोर्टेड कैपिटल गुड्स पे उसको माइनस कर देंगे, ऐसे गवर्नमेंट पे माइनस कर देंगे। तो आपको पता होगा फिर हमें यहाँ पर यम लगाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फिर हमें इंपोर्ट, क्योंकि हमने ईच लेवल पर माइनस कर दिया जितना इंपोर्टेड गुड्स थे। और जीडीपी क्या है, जो हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी में प्रोड्यूस उसी को जीडीपी कहेंगे, लेकिन एक्सपोर्ट लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कुछ तो एक्सपोर्ट आपका हुआ है, जो एक्सपोर्ट अदर कंट्रीज ने खाया, अदर फॉरनर्स ने ईट किया है, दैट इज प्रोड्यूस इन योर कंट्रीज, and you have minus all the imported good each stage. So now you need not to minus the imported last stage. It's a simple concept, okay।
चाहे आप यहाँ पर माइनस कर दो इंपोर्ट, चाहे ईच स्टेज पे माइनस कर दो, सेम बात है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर सर क्या कह रहे हैं, ईच स्टेज पर माइनस होकर वो कह रहे हैं कि आई विल ओनली दिस स्टेटमेंट इज सेंडेड कि द सम टोटल ऑफ डोमेस्टिकली फाइनल कंजम्पशन, domestic sum total of domestic final consumption means the goods produced in the domestic territory of India, only that consumption either by the government, either by the industries, either by the household. So only domestically produced goods are included in this, okay. And domestically इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, मतलब डोमेस्टिकली प्रोड्यूस कैपिटल गुड्स पर ही एक्सपेंडिचर इन्वेस्टमेंट है फर्म्स का, ठीक है। फिर कह रहे हैं प्लस 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 नेट ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि जब आप डोमेस्टिक लेवल का ही गुड्स यहाँ पर भी कवर कर रहे हैं, यहाँ पर भी कवर कर रहे हैं, यहाँ पर भी डोमेस्टिक गुड्स ही कवर कर रहे हैं, एंड यू आर नॉट इंक्लूडिंग द इंपोर्टेड गुड्स, देन यू नीड नॉट टू माइनस द इंपोर्टेड गुड एट द लास्ट, ओके। देखिए, मैं सिंपल सा फिर से आपको ये स्टेटमेंट, दैट्स वाई दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, मैं समझाता हूँ। फिर से सोचिए कि अगर मान लीजिए 100 रुपये का डोमेस्टिक गुड्स प्रोड्यूस हुआ, नाउ ये 100 रुपये का डोमेस्टिक गुड्स क्या हुआ, 10 रुपये का हाउस होल्ड कंजम्पशन कर लिया, 10 का ये कर लिए, 10 का ये कर लिया, 30 हो गया, और 70 रुपीज़ का हमने एक्सपोर्ट कर दिया। सो आई कैन से दैट कि आफ्टर कैलकुलेटिंग ऑल दिस, ठीक है, 70 एक्सपोर्टेड प्लस 10, तो हम कह सकते हैं कि 100 रुपये का प्रोड्यूस्ड हुआ। इवन आई डोंट नो दैट्स दिस, ओके, इवन ये मुझे नहीं पता है फार्म्स लेवल पर, बट हम ये एक्सपेंडिचर मेथड देख के, कंजम्पशन मेथड देख के बोल सकते हैं, और यही जीडीपी हो गई हमारी। लेकिन ऐसा होता नहीं नॉर्मल इकोनॉमी, क्योंकि कुछ इंपोर्टेड गुड्स भी लोग कंज्यूम करते हैं, तो इसीलिए हम इंपोर्टेड गुड माइनस करते हैं। लेकिन अगर हमें पता चल जाए कि कितने डोमेस्टिक गुड्स ही हर लेवल पर कंज्यूम हुए हैं और कितने एक्सपोर्ट हुए हैं, तो हम बता सकते हैं कि इतना ही हमारी जीडीपी है, हमें इंपोर्टेड गुड्स से कोई मतलब नहीं है। तो जब यहाँ पर कह रहे हैं डोमेस्टिकली कंज्यूम ही, डोमेस्टिकली एक्सपेंडिचर ही, तो यहाँ पर इंपोर्ट करने की, इंपोर्टेड गुड्स को प्लस माइनस करने का कोई मतलब नहीं है, ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि डोमेस्टिक की जगह तो ये रॉन्ग। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट कीजिएगा, मैं हूँ आपके लिए। फिर सेकेंड इज सेइंग दैट कि इट इज द सम टोटल ऑफ फाइनल डोमेस्टिक कंजम्पशन, ओके, सिंपल थिंग दैट, एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर प्लस एक्सपोर्ट। वही जो मैंने बोला था कि इंपोर्ट यहाँ पर नहीं इंक्लूड किया, इसीलिए ये सही है, क्योंकि डोमेस्टिकली गुड्स प्रोड्यूस एंड कंज्यूम बाय द पर्सन इन होल कंट्रीज प्लस डोमेस्टिकली कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस एंड कंज्यूम बाय द होल फॉर्म्स प्लस एक्सपोर्टेड डोमेस्टिकली गुड्स, this is the GDP of our countries, okay, this is correct, okay, this is correct, because import ना इंक्लूड किया है ना, इंपोर्ट हम माइनस करेंगे, अगर इंक्लूड ही नहीं किया तो माइनस करने की कोई जरूरत नहीं है इंपोर्ट की, ठीक है। फिर थर्ड इज सेइंग दैट कि इट इज द सम टोटल ऑफ फाइनल कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट। देखो, हियर इज अ ट्रिक, 1 minute आई विल क्लियर। Third statement, second I said कि it is correct and first is incorrect because imported good will be not included because only domestic goods consumption is saying that, okay। तो थर्ड फिर से हम लिख लेते हैं C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, ठीक है, ऐसे मान लो ये वही लिखा है, ओके। saying that it is the sum total of final consumption. Now this is the final, not a domestic final consumption, it is a final consumption only. Either when we say it is the final consumption, it includes the domestic goods plus imported goods too, don't we, okay। फाइनल कंजम्पशन और डोमेस्टिक फाइनल कंजम्पशन में डिफरेंस है। डोमेस्टिक फाइनल कंजम्पशन में हम कहते हैं कि केवल डोमेस्टिकली प्रोड्यूस गुड ही कंज्यूम करें, वही हम गिनती कर रहे हैं। लेकिन जब हम फाइनल कंजम्पशन ही ओनली यूज करते हैं, तो इसका मतलब चाहे वो इंपोर्ट होकर आया हो, चाहे वो डोमेस्टिक टेरिटरी में आया हो, दोनों गुड्स को हम इंक्लूड कर रहे हैं यहाँ पर हर लेवल पे, डोमेस्टिक प्लस इंपोर्ट, डोमेस्टिक प्लस इंपोर्ट, डोमेस्टिक प्लस इंपोर्ट। तो कह रहे हैं कि इट इज द सम ऑफ टोटल फाइनल कंजम्पशन आइदर डोमेस्टिकली और इंपोर्टेड कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट, चाहे डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट हुआ, डोमेस्टिक कैपिटल गुड्स पे इन्वेस्टमेंट हुआ हो, या फिर इन्वेस्टमेंट या फिर अब्रॉड से, ठीक है, एक्सपेंडिचर प्लस नेट एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, इट इज अ दिस फॉर्मूला ओनली, ओके। तो यहाँ पर हम इंपोर्ट माइनस करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने इंपोर्ट इंक्लूड किया है जब हमने कहा कि फाइनल कंजम्पशन है, जब हमने डोमेस्टिक वर्ड नहीं यूज किया तो हमने इंपोर्ट इंक्लूड कर लिया, और जब हमने इंपोर्ट इंक्लूड कर लिया तो हमको लास्ट में इंपोर्ट माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि इंपोर्टेड गुड्स आर नॉट पार्ट ऑफ जीडीपी। सो दिस इज करेक्ट। 2 and 3 are correct। 4 देखते हैं, इट इज द सम टोटल ऑफ फाइनल कंजम्पशन, सेम इज सेइंग दैट,
एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर प्लस एक्सपोर्ट। देखो जब फाइनल कंजम्पशन आप ले रहे हो तो डोमेस्टिक प्लस इंपोर्टेड आ रहा है, तो आप केवल प्लस एक्सपोर्ट करके नहीं चले जा सकते, आपको इंपोर्ट माइनस करना पड़ेगा क्योंकि आपने इंपोर्ट इंक्लूड कर लिया, तो ये इनकरेक्ट। सो 2 एंड 3 आर करेक्ट। आई थिंक बहुत समझा दिया। अगर अभी नहीं समझ में आया तो भाई आपको थोड़ा मतलब कॉन्सेप्ट पे फोकस करने की ज़रूरत है, फिर मैं कुछ नहीं कर सकता अभी, करूँगा लेकिन फिर इस वीडियो में भी नहीं कर सकता, मैं आपको अलग से वीडियो बनाकर या आप मुझे मैसेज करेंगे तब मैं आपको और भी अच्छे से समझा सकता हूँ, बिल्कुल बच्चे की तरह। ओके, नो इशू दैट। सेकंड क्वेश्चन इज सेइंग दैट कि इफ़ इंडिया इज एक्सपीरियंसिंग इकोनॉमिक ग्रोथ, मतलब कह रहा है कि इंडिया इकोनॉमिक ग्रोथ एक्सपीरियंस कर रहा है। व्हाट इज इकोनॉमिक ग्रोथ? फर्स्ट, इकोनॉमिक ग्रोथ इज अ इंक्रीज इन रियल जीडीपी। फर्स्ट इज यू नीड टू रिमेंबर दैट in India, economic growth is measured increase in real GDP and real what is real GDP? आप ये तो अपने कॉन्सेप्ट में पढ़ेंगे बट मैं आपको थोड़ा आइडिया देता हूँ। रियल जीडीपी मीन्स क्वांटिटी, आप जस्ट याद रखें। नॉमिनल जीडीपी मीन्स प्राइस प्लस क्वांटिटी। तो रियल जीडीपी मीन्स इंक्रीज इन क्वांटिटी, मीन्स अगर हम 10 केजी 2010 में प्रोड्यूस कर रहे थे और 2011 में हमने 20 केजी प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिया, गेहूं या व्हीट या एवरीथिंग व्हाट एवर, देन इट इज अ इंक्रीज इन द क्वांटिटी एंड इट इज अ इंक्रीज इन द रियल जीडीपी। ओके, नॉमिनल जीडीपी मीन्स 10 kg we are producing in 2010 even, and now even we are producing it 10 kg. Okay, but because of the inflation, the 10 kg price in 2010 is a 10 rupees, but 10 kg price in the 2011 is a 20 rupees. So because of inflation the price have increased but the quantity, the real goods, समझ रहे हो, पैसा तो खा नहीं सकते ना भाई, रियल गुड्स में तो कोई इंक्रीमेंट ही नहीं हुआ है, देयर इज नो इंक्रीमेंट, it's only increase in the nominal GDP because of the price, because the in 2010 the 10 kg wheat price was 10 rupees because 1 kg wheat price was 1 rupees, but in 2011 the price of 10 kg goods, the price of 10 kg goods is 20 rupees, the quantity is same, but the because the 1 kg goods price is increased from 1 rupees to 2 rupees, and this leads to increase the GDP 20 rupees. Okay, the GDP became the 20 rupees. Why? Because the increase in the price but not increase in the quantity. So this is not a real GDP, this is an increase in the nominal GDP. Okay, nominal GDP. I hope you have understood. So real GDP in India, इकोनॉमिक ग्रोथ इज जनरली काउंटेड ऑन द रियल जीडीपी इंक्रीज इन द क्वांटिटी। एक ट्रैक्टर अगर 2010 में प्रोड्यूस कर रहे थे तो 10 ट्रैक्टर हम 2020 में अगर प्रोड्यूस करेंगे तभी हम आप कहेंगे कि जीडीपी हमारी इंक्रीज हुई, रियल जीडीपी। हम ऐसा नहीं कह सकते कि एक ट्रैक्टर हम 2010 में प्रोड्यूस कर रहे थे जिसकी प्राइस 1 लाख रुपए थी, नाउ इट हैज बिकम द 20 लाख, वन ट्रैक्टर प्राइस, एंड इवन वी आर ओनली प्रोड्यूसिंग 1 ट्रैक्टर, तो जीडीपी इंक्रीज हो गई 1 लाख से 20 लाख, तो नहीं, क्योंकि ट्रैक्टर तो एक ही प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये तो केवल प्राइस इंक्रीज होने से हुआ है, जो कि रियल जीडीपी नहीं, जो कि इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं है। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड यार। ओके, लेट अस नो, इफ इंडिया इज एक्सपीरियंसिंग इकोनॉमिक ग्रोथ मीन्स इंक्रीज इन द रियल जीडीपी, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट मस्ट होल्ड ट्रू, मतलब 100% ट्रू होगा, कोई भी सिचुएशन आ जाए, ठीक है, मस्ट होल्ड ट्रू। तो फर्स्ट करें रियल जीडीपी विल इंक्रीज, यही तो बताया अभी मैंने कि अगर इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है तो रियल जीडीपी 100% है, इंक्रीज होगी, देयर इज नो अदर वे, रियल जीडीपी विल इंक्रीज इन एनी सर्कमस्टांसेस इफ देयर इज अ पॉजिटिव इकोनॉमिक ग्रोथ। ओके, तो इट इज अ मस्ट ट्रू, इट विल बी ट्रू। तो फर्स्ट इज करेक्ट। सेकेंड इज कहेंगे नॉमिनल जीडीपी विल इंक्रीज। सी दैट इकोनॉमिक ग्रोथ डजंट मीन दैट, सी दैट नो, इकोनॉमिक ग्रोथ डजंट मीन दैट कि नॉमिनल जीडीपी विल इंक्रीज इफ देयर इज अ डिफ्लेशन। बताओ अगर डिफ्लेशन हो गया तो 2010 में जिसकी प्राइस, जिस गुड्स की प्राइस 10 रुपये थी वो 2011 में डिफ्लेशन के कारण 9 रुपये बची, तो गुड्स तो सेम है, तो हम ऐसा थोड़ी कह सकते हैं कि मतलब देयर इज अ डिक्रीज इन द रियल जीडीपी, नहीं कह सकते, लेकिन वी विल कैन से दैट कि देयर इज अ डिक्रीज इन द नॉमिनल जीडीपी बिकॉज द प्राइस इज, द नॉमिनल जीडीपी इज नाउ 9 रुपीज़ एंड 2010 इट वाज 10 रुपीज़। तो नॉमिनल जीडीपी डिक्रीज हो सकता है, इवन देयर इज अ इंक्रीज इन रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी डिक्रीज हो सकता है अगर वहाँ पर डिफ्लेशन है, अगर प्राइस में डिक्रीज हो गया, प्राइस डिक्रीज हो जाए
तो नॉमिनल जीडीपी डिक्रीज हो जाएगा, इवन क्वांटिटी इंक्रीज होती जा रही है तो, ठीक है, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ रियल जीडीपी विल इंक्रीज, रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ रियल जीडीपी इट्स नॉट नेसेसरी, यहाँ पर नेसेसरी कंडीशन पूछा है, इट्स नॉट नेसेसरी कि रेट ऑफ ग्रोथ इंक्रीज होगा। जस्ट एज्यूम दैट कि 2011, 12 एंड 13 यहाँ पर हमारी जीडीपी कितनी थी, 100 रुपीज़ थी, यहाँ पर 200 हो गई और यहाँ पर 300 हो गई। यहाँ से यहाँ पर रेट ऑफ ग्रोथ क्या है, 100%, बट यहाँ से यहाँ पर हमारा रेट ऑफ ग्रोथ क्या है, 50%। नाउ वी कैन नॉट से दैट कि अब देखो यहाँ पर 100% 50% हुआ रेट ऑफ ग्रोथ, तो जीडीपी का डिक्रीज, लेमैन टर्म में समझा रहा हूँ, बिल्कुल उसमें मत चले जाना, इकोनॉमिस्ट मत बनना भाई। तो 100% से 50% हुआ रेट ऑफ ग्रोथ, तो डिक्रीज हुआ। लेकिन क्या जीडीपी डिक्रीज हुई, देखो बढ़ रही है, 100 से 200 हो गई, 200 से 300 हुई, तो ऐसा नहीं कि रेट ऑफ ग्रोथ डिक्रीज होगा तो हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होगा, और इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो रहा है, देखो 100 रुपये से 200, 200 से 300 का प्रोडक्ट हमने प्रोड्यूस किया, तो ये इनकरेक्ट। फिर इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, ये तो इंडिया की ही प्रॉब्लम है यार, हम कहते हैं कि हमारी जीडीपी इंक्रीज हो रही है लेकिन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं हुआ, इस पे मेंस का भी क्वेश्चन आता है, तो ये मस्ट ट्रू नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो इंडिया में बहुत एम्प्लॉयमेंट हो जाता, ठीक है, क्योंकि जीडीपी हो सकती है सर्विस सेक्टर के रीजन से इंक्रीज हुई हो, एंड देयर इज अ चांस दैट कि जीडीपी इज इंक्रीज बाई ओनली फ्यू पीपल, there is only few people contributing for the GDP, rest are the unemployed, okay, so you cannot say that, it is not much true, so only first statement is necessarily true, so यहाँ पर केवल फर्स्ट होगा ट्रू, ठीक है। और हाँ यार कमेंट करके ये बताना कि क्या मैं थोड़ा स्लो चल रहा हूँ, अगर ऐसा होगा तो स्पीड थोड़ा इंक्रीज कर दी जाएगी, देयर इज़ नो इशू, मैं स्पीड में भी काफ़ी तेज चल सकता हूँ, तो उसमें कोई इशू नहीं है। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि इफ़ अ कंट्री एक्सपीरियंसिंग रिसेशन, पहले इकोनॉमिक ग्रोथ बोला, अब रिसेशन बोल रहे हैं, रिसेशन मीन्स डिक्रीज इन द रियल जीडीपी, डिक्रीज इन द क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन, उसी को रिसेशन बोलेंगे, डिक्रीज इन द क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन उसी को रिसेशन बोलेंगे, ठीक है। देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू, सो देयर इज अ मस्ट बी ट्रू, तो डिक्रीज होगा रियल जीडीपी में, अगर इकोनॉमिक ग्रोथ में डिक्रीज होता है तो उसका जस्ट उल्टा डिक्रीज होगा रियल जीडीपी, ठीक है। बाकी नॉमिनल जीडीपी मैंने पहले ही बता दिया कि रिसेशन के टाइम भी नॉमिनल जीडीपी डिक्रीज होने का कोई चांस नहीं, हो सकता है कि इन्फ्लेशन के रीजन से जीडीपी ज़्यादा हो जाए, क्वांटिटी उतनी ही रहे, या क्वांटिटी कम हो जाए लेकिन प्राइस इंक्रीज हो जाए, क्योंकि नॉमिनल जीडीपी मैंने एक आपको लेमैन टर्म में बताया था, नॉमिनल जीडीपी इज इक्वल टू क्वांटिटी प्लस प्राइस, एंड रियल जीडीपी इज इक्वल टू ओनली क्वांटिटी, तो अगर ओनली क्वांटिटी में इंक्रीज होता है प्राइस में नहीं, तो वो इंक्रीज इन द रियल जीडीपी हो गया, अगर प्राइस और क्वांटिटी दोनों में इंक्रीज हो रहा है तो इंक्रीज इन द नॉमिनल जीडीपी, और इवन क्वांटिटी डिक्रीज हो रहा है लेकिन प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो भी इंक्रीज इन रियल जीडीपी हो, नॉमिनल जीडीपी होगा, क्योंकि ओवरऑल तो इंक्रीज हो रही है नॉमिनल जीडीपी ना, तो ये जरूरी नहीं है। तो डिक्रीज इन नॉमिनल जीडीपी ये नहीं, मतलब ऐसा हो सकता है कि इन्फ्लेशन के कारण इंक्रीज होती जाए नॉमिनल जीडीपी, बट रिसेशन हो मार्केट में क्योंकि क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन लेस है। फिर डिक्रीज इन द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ जीडीपी, वो मैंने पहले ही समझा दिया है, ठीक है, ये नेसेसरी नहीं है। फिर ऑल ऑफ द अबव तो होगा ही नहीं, तो फर्स्ट इज करेक्ट ओनली, ओके। रेट ऑफ ग्रोथ से कोई ज़्यादा रिसेशन और डिप्रिसिएशन का नहीं बोल सकते, क्योंकि वो इन्फ्लेशन से रिलेटेड है ना। रेट ऑफ ग्रोथ कैसे, किसी की ग्रोथ रेट आप कैसे निकालते हैं, लास्ट ईयर और दिस ईयर कितना प्रोड्यूस हुआ इन 100, फिर रेट ऑफ ग्रोथ हम निकाल लेते हैं, ठीक है। तो लास्ट ईयर कितना प्रोड्यूस हुआ इस ईयर, तो हम प्राइस के कारण वही जितना लास्ट ईयर प्रोड्यूस हुआ था उतना ही हो सकता है इस ईयर प्रोड्यूस हुआ, लेकिन प्राइस के कारण हो सकता है वो ज़्यादा दिखा दे और रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ जीडीपी प्लस हो जाए, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। तो रेट ऑफ ग्रोथ पे ज़्यादा नहीं है, इम्पोर्टेंट है। फिर फिफ्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा इसको जूम कर दिया मैंने कुछ लिखा था वहाँ पर, लेकिन चलो नहीं दिख रहा है तो कोई बात नहीं, मैं तो हूँ। फोर्थ नंबर क्वेश्चन इज सेइंग द नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री इज इक्वल टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, नेशनल इनकम, ये आपको रट्टा मारना है, मैं जनरली बोलता हूँ, और चाहे नेशनल इनकम बोले या आपसे बोले नेट नेशनल इनकम या आपसे बोले नेट नेशनल प्रोडक्ट, नेशनल इनकम, नेट नेशनल इनकम, नेट नेशनल प्रोडक्ट, ये तीनों इंटरचेंजेबली यूज किए जाते हैं, तीनों इंटरचेंजेबली यूज किए जाते हैं। ये आपको से कोई बोल दे जीडीपी माइनस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो ये भी आपका हो जाएगा नेशनल इनकम, तो ये चारों एक ही है। अब आप कहोगे कि इनमें कोई तो डिफरेंस होगा, हाँ विकीपीडिया वाला डिफरेंस है, तो उसका कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको, ठीक है, आपको इकोनॉमिस्ट नहीं बनना है, आपको जनरल नॉलेज चाहिए इकोनॉमी का, जनरल बेसिक, ठीक है।
तो ये तीनों आप याद रखना कि सेम है, कि नेशनल इनकम हो गया, नेट नेशनल इनकम हो गया, नेट नेशनल प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। ये जीडीपी माइनस नेशनल नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इट इज आल्सो इक्वल टू नेशनल इनकम। एंड नेशनल इनकम जो कैलकुलेट होता है, नेशनल इनकम जो इक्वल होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस पर कैलकुलेट करता है। कौन कैलकुलेट करता है? तो एनएसओ, नेशनल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि हमारे मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक एंड इम्प्लीमेंटेशन के अंदर आता है। पहले क्या था कि फैक्टर कॉस्ट पे रहता था, लेकिन अभी क्या हो गया है? मार्केट प्राइस पे हो गया है। ओके ओके। अब देखते हैं फिफ्थ नंबर क्वेश्चन। एक रहा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू रिगार्डिंग द ग्रॉस नेशनल इनकम। ग्रॉस मीन्स टोटल नेशनल इनकम, नेशनल इनकम, टोटल नेशनल इनकम। तो यहाँ पर फिर आपको एक बात मैं ये बता दूँ, चाहे ग्रॉस नेशनल इनकम हो या ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट हो या फिर जीडीपी माइनस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, एक गलती हो गई है, थोड़ी माफ़ करना। इट इज करेक्ट कि ग्रॉस नेशनल इनकम इज इक्वल टू ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एंड ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट इज इक्वल टू ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट माइनस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज आल्सो इक्वल टू द ग्रॉस नेशनल इनकम। वहाँ पर मैंने जीडीपी जो बोल दिया था, जी नेशनल इनकम है, वहाँ पर जीएनपी आप कर लेना, ठीक है। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट माइनस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज इक्वल टू नेशनल इनकम, ठीक है। जीएनपी माइनस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज इक्वल टू नेशनल इनकम, और जीडीपी, जीएनपी नहीं, जीडीपी माइनस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज इक्वल टू ग्रॉस नेशनल इनकम, ठीक है। तो ये आप वहाँ पर चेंज कर लेना, गलती हो गई, सॉरी फॉर दैट, ठीक है। तो ये तीनों इक्वल है, ग्रॉस नेशनल इनकम, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एंड जीडीपी माइनस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, दीज ऑल थ्री आर इक्वल। नाउ वी विल सी द कोई स्टेटमेंट कि कह रहे हैं रिगार्डिंग ग्रॉस नेशनल इनकम के क्या सही है। फर्स्ट कह रहे हैं कि इट इज़ द इनकम अर्न बाई अ कंट्रीज रेसिडेंट, कंट्रीज रेसिडेंट, कंप्लीटली करेक्ट। यहाँ पर आप रेसिडेंट ओनली लगा दीजिए। ग्रॉस नेशनल इनकम क्या है कि इट इज़ अ इनकम अर्न बाई द कंट्रीज रेसिडेंट ओनली, नॉन रेसिडेंट को नहीं इंक्लूड करेंगे, ठीक है। ओनली रेसिडेंट, चाहे वो कहीं भी अर्न कर रहे हैं, नॉट ओनली डोमेस्टिक टेरिटरी, वो इंडिया में अर्न कर रहे हैं, चाइना में अर्न कर रहे हैं, पाकिस्तान में अर्न कर रहे हैं, बांग्लादेश, यूएसए, कहीं भी वो अर्न कर रहे हैं पैसा, कहीं भी वो प्रोडक्शन कर रहे हैं, वो सब हमारा पार्ट होगा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट का, ग्रॉस नेशनल इनकम का। एंड आई टोल्ड यू बिफोर जस्ट नाउ कि ग्रॉस नेशनल इनकम इज इक्वल टू ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एंड ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट इज इक्वल टू जीडीपी माइनस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम abroad. So these three, all three concepts are used interchangeably. Okay. So only resident, non-resident person will not include and not come under the gross national income. The only resident of India, who the resident, मैं रेसिडेंट की डेफिनेशन पहले ही बता चुका हूँ, जो मोस्ट ऑफ द टाइम इंडिया में रहता हो वही रेसिडेंट हो। तो यहाँ पर आप सिटीजन से फिर कंफ्यूज मत हो जाना, यूपीएससी कंफ्यूज कर सकता है। तो इंडिया का रेसिडेंट हो, वो कहीं भी कमाता हो, जीडीपी क्या है कि वो इंडिया में ही अगर वो प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, इंडिया में ही सर्विस दे रहा है, तो जीडीपी हो गई। ग्रॉस नेशनल इनकम क्या कहता है? तुम कहीं भी प्रोड्यूस कर रहे हो, कहीं से भी पैसा कमा रहे हो, तुम्हारा नेशनल इनकम में या ग्रॉस नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाएगा, कहीं से भी, डोमेस्टिक टेरिटरी इंडिया ही नहीं, कहीं से भी, और तुम रेसिडेंट होनी चाहिए इंडिया के बस, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, क्योंकि रेसिडेंट इज, मैंने कहा था ओनली भी, इसलिए मैंने लगा दिया। सेकेंड इज सेइंग दैट कि इट इज़ द इनकम अर्न बाय द कंट्रीज रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट। नॉन रेसिडेंट यार, तुम अगर कोई इवन इंडियन सिटीजन है लेकिन वो यूएसए में रहता है और यूएसए में का रेसिडेंट है, यूएसए का की रेसिडेंट पॉलिसी को फॉलो कर रहा है, वहाँ का रेसिडेंट है, तो उसको हम ग्रॉस इनकम नेशनल इनकम में नहीं इंक्लूड करेंगे, चाहे वो कहीं का भी सिटीजन हो, ठीक है। वो इंडिया के ग्रॉस नेशनल इनकम में नहीं इंक्लूड किया जाएगा, क्योंकि वो यूएसए का रेसिडेंट है, यूएसए में अर्न कर रहा है, तो वो यूएसए के रेसिडेंट नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा। ओके, तो नॉन रेसिडेंट वी विल नॉट इंक्लूड, तो 2 इज इनकरेक्ट। थर्ड, इट इज कैलकुलेटेड एट मार्केट प्राइस बाय एनएसओ। तो ये याद रखना फैक्ट है कि हाँ, ग्रॉस नेशनल इनकम क्या होता है, मार्केट प्राइस पर कैलकुलेट किया जाता है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। कह रहे इट इज इक्वल टू जीडीपी प्लस एक्सपोर्ट एंड माइनस इंपोर्ट। मैंने क्या कहा था, इट इज इक्वल, जो ग्रॉस नेशनल इनकम या प्रोडक्ट है, इज इक्वल टू जीडीपी माइनस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एड्रा, देयर इज नो एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये इनकरेक्ट हो गया, तो ओनली 1 एंड 3 आर करेक्ट।
यहाँ पर मैंने मार भी दिया, या आप यहाँ पर देख सकते हैं ये थोड़ा जो शो नहीं हो रहा है वो जीडीपी माइनस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड है। ठीक है, तो ये तीनों इक्वल है। फिर यहाँ पर देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 6th नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि प्रोडक्ट टैक्सेस एंड प्रोडक्शन। प्रोडक्ट टैक्सेस क्या होता है, प्रोडक्शन टैक्सेस क्या होता है, ये मैंने इसीलिए वो स्लाइड इंक्लूड किया, अभी हम देखते हैं। ठीक है, कह रहे हैं कि प्रोडक्ट टैक्सेस एंड प्रोडक्शन टैक्सेस बोथ आर इंक्लूडेड एज अ पार्ट ऑफ जीडीपी कैलकुलेशन। मैं वैसे आपको समझाने का ट्राई करता हूँ, आई होप आप समझ जाएंगे। ठीक है, तो प्रोडक्ट टैक्सेस, देखिए फाइनल कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुआ तो उस पर तो गवर्नमेंट टैक्स लगाती ही है, जीएसटी हो गया, फिर और कोई टैक्स हो गया तो उस पर तो गवर्नमेंट लगाती है। प्रोडक्शन टैक्सेस भी होते हैं, जैसे तुम कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हो, उस पर मतलब कोई इंटरमीडिएट गुड्स फाइनल गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए ला रहे हो तो उस पर कोई टैक्स लगेगा, तुम्हारा रजिस्ट्रेशन फीस लगती है। ठीक है, बहुत कुछ लगता है इंटरमीडिएट लेवल पे ही प्रोडक्शन के। इन द यू कैन से स्टेज ऑफ प्रोडक्शन द टैक्सेस आर इम्प्लाइड कॉल द प्रोडक्शन टैक्सेस एंड दीज बोथ आर इंक्लूडेड इन द जीडीपी कैलकुलेशन। बिल्कुल, आपके इंटरमीडिएट गुड्स पे जो टैक्सेस लगा, क्या वो जीडीपी का पार्ट नहीं है? बिल्कुल पार्ट है वो अलग बात है कि लास्ट में आकर गवर्नमेंट आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट प्रोवाइड करती है, बट डजंट मीन कि वो हर चीज़ पे वो जीएसटी पे प्रोवाइड करती है। आपका रजिस्ट्रेशन फीस लगा, वो भी एक प्रकार का टैक्स है। आपने रेंट दिया, अपने जहाँ पर आप की इंडस्ट्री है, वो भी आपके प्रकार का है, तो उसको हम कहते हैं कि प्रोडक्शन टैक्सेस है वो, या प्रोडक्शन आप कह सकते हैं कि इंटरेस्ट है। ठीक है, तो वो दोनों इंक्लूड होते हैं जीडीपी में, क्योंकि आप जो प्रोडक्शन होता है वो जो मैन्युफैक्चरर होगा वो इंक्लूड करेगा अपना कॉस्ट, जो ये सब इनकर्ड होगा, चाहे वो किसी के सैलरी से हो, चाहे वो इंटरेस्ट लैंड पर देना हो, चाहे मशीनरी का हो, चाहे चाहे रजिस्ट्रेशन फीस हो किसी प्रोडक्ट की, चाहे गवर्नमेंट फीस किसी की देनी पड़े, वो सब इंक्लूड करता है मैन्युफैक्चर। ठीक है, और प्रोडक्ट टैक्स गवर्नमेंट लगा देती है, तो ये दोनों इंक्लूड होते हैं जीडीपी में। ठीक है, फिर सेकेंड कह रहा है कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड यानी एफआईए इज इक्वलेंट टू नेट एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। भाई कैसे इक्वलेंट हो जाए? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड मतलब लैंड लेबर कैपिटल इंटरप्रेन्योरशिप से जो लोग पैसा भेजते हैं या जो पैसा आता है वो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के कैसे बराबर हो जाएगी? ये तो बिल्कुल अपसर्ड सा, इतना अपसर्ड कि बोलने में भी शर्म आवे। तो 1 इज करेक्ट। ओके, तो आई होप मैंने यहाँ पर आपको लिख के दिया भी था। ठीक है, प्रोडक्शन टैक्सेस प्लस माइनस सब्सिडीज। ठीक है, अभी ये और भी हम देखेंगे। तो यहाँ पर आप प्रोडक्शन टैक्सेस एंड प्रोडक्ट जो सब्सिडीज होते हैं, प्रोडक्शन टैक्सेस क्या होते हैं? स्टाम्प ड्यूटीज लगा आप पर, लैंड का रेंट लगा, रजिस्ट्रेशन फीस लगा जो आप पर, ये आप अगर एज आ आप एंटरप्रेन्योर, क्या आप ये इंक्लूड नहीं करोगे अपने प्रोडक्ट में? आप कहोगे कि हमारा मेरा इतना कॉस्ट लगा है भाई, और आप वो कॉस्ट उसको जोड़ कर बताओगे कि मेरे प्रोडक्ट की इतनी कॉस्ट प्राइस आई, लेकिन वो कुछ टैक्सेस, कुछ फीस, कुछ चार्जेस लगे हुए हैं, तो वही प्रोडक्शन है। फिर प्रोडक्ट टैक्सेस, प्रोडक्शन सब्सिडीज क्या होती हैं? सब्सिडीज प्रोडक्शन लेवल पर जो सब्सिडी आपने मतलब रेलवे का यूज करके गुड ट्रांसपोर्ट किया, तो गवर्नमेंट ने कहा कि हम तो आपको सब्सिडी दे रहे हैं। ठीक है, आपको गुड्स प्रोड्यूस करने पर, जिससे इंपोर्ट एक्सपोर्ट जीडीपी ग्रोथ हो और देश की इकॉनमी बढ़े, तो वो प्रोडक्शन सब्सिडीज हो गई जो इंटरमीडिएट लेवल पर आपको मिली। तो यही सब है। बाकी आप, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आप बिल्कुल इसको रट्टा मान लीजिए, जितना आपका हो गया उतना ठीक है, आपको मैं ये समझा दूंगा बहुत ईजिली आगे। ठीक है, उतना तो आप समझ गए होंगे आई होप, यूपीएससी कर रहे हैं तो मैं थोड़ा एज्यूम करके चल रहा हूँ। ओके, ये क्लियर ना होगा तो बता देना, थोड़ा ये क्लिक करने में वो हो गया, बट मैं पढ़ता हूँ और आप ट्राई करना कि ना थोड़ा सुनने का ट्राई करना। ठीक है, कहते हैं ना काक चेष्टा वको ध्यानम, ऐसा कोई विद्यार्थी के 6 to 7 रूल्स होते हैं, तो उसमें ऐसा भी एक काक चेष्टा, कौवे की तरह चेष्टा होनी चाहिए। चलो, वेलफेयर ऑफ द पीपल ऑफ अ कंट्री। वेलफेयर मतलब आप कह सकते हो कि ईज ऑफ लिविंग्स या फिर गुड लाइफ, ये सब ऑफ अ कंट्री इज बेस्ट रिप्रेजेंटेड बाई व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर। अगर हमें किसी कंट्री के वेलफेयर को मेजर करना है कि हाउ मच दैट कंट्रीज पर्सन आर हैप्पी, हाउ मच दैट कंट्रीज पर्सन हैव गुड लाइफ, सो व्हिच पैरामीटर वी विल यूज टू मेजर दैट। So the parameter we will use to measure that is the, you have to remember in any cost, is per capita national income at current price. Current, sorry, not current price, on the constant price. Constant price पर नेशनल इनकम पर कैपिटा मतलब एवरी पर्सन की कितनी इनकम है। इनकम डिसाइड करता है ना कि आपकी लिविंग लाइफ कैसी होगी, पैसा डिसाइड करता है, और वो कांस्टेंट प्राइस पे चेक करेंगे हम। क्यों कांस्टेंट प्राइस पे? भाई मान लेते हैं कि
तुम्हारी 100 रुपीज़ से सैलरी 10 साल में 200 हुई, बट 10 साल में तो इन्फ्लेशन भी तो बढ़ा। तो अगर हम करंट प्राइस पे देखेंगे तो 100 रुपीज़ में 10 साल में 1 किलो सेब मिलता था एप्पल, ओके, एंड 200 नाउ द 1 kg सेब। तो देयर इज नो इंक्रीज इन द लिविंग इंडेक्स, नो इंक्रीज इन द योर लाइफ, only the salary is increased because of inflation, and that increase in the salary is eaten by inflation, कहते हैं ना eaten by inflation। सो कांस्टेंट प्राइस पर जब हम देखेंगे कि आपकी नेशनल इनकम कितना इंक्रीज हुई, तो हमको पता चलेगा कि आपका एक्चुअली में, अगर आप 10 साल पहले 1 kg बाई कर पा रहे थे 100 रुपये में, तो आपकी जो सैलरी इंक्रीज हुई है, क्या उस सैलरी से आप आज 2 kg बाई कर पा रहे हैं? अगर कर पा रहे हैं तो आपकी नेशनल इनकम, आपकी पर कैपिटा इनकम इंक्रीज हुई है। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो भले ही आपकी सैलरी कितनी भी हो जाए, वो सब इन्फ्लेशन के रीजन से है, ठीक है। तो ये 7th इज करेक्ट। आई होप यू गेट पॉइंट माई। 1 मिनट, ओके। और मैं अगर अदर स्टेटमेंट्स जो इसमें है उनकी बात करूं, जैसे कि ये तो सच है हमारा, फिर करंट प्राइस पर हम क्यों नहीं देखेंगे? क्योंकि वो इन्फ्लेशन लगा होता है, तो इसलिए गलत है। इन्फ्लेशन से कुछ भी हो सकता है, कितना भी बढ़ जाए, लेकिन लाइफ में कुछ इंक्रीमेंट आए या ना आए को मतलब पता नहीं होता। एंड पर कैपिटा जीडीपी, जीडीपी हम नहीं लेते। क्यों नहीं लेते? सोचो, जीडीपी इसलिए नहीं लेते बिकॉज इट इज़ नॉट अ गुड इंडिकेटर, इट्स जनरली अवॉइड सम मेनी थिंग्स, okay, so we generally not include a GDP because when we say that GDP generally there is a few person who hold the most of the proportion of the GDP, okay, so GDP we will not include। तो GDP is not a good measure to measure the welfare of the people of any country, okay। तो GDP तो पूरा यहाँ से वैसे ही हटा देना। आपको कन्फ्यूजन इन दोनों में होना चाहिए। और जब भी करंट प्राइस आ जाए, जब भी आपकी मार्केट प्राइस आ जाए, तभी आप सोच लीजिए कि इनमें इन्फ्लेशन घुसा हुआ है। देयर इज अ इन्फ्लेशन इंक्लूडेड इन मार्केट प्राइस, इन करंट प्राइस, एंड इन्फ्लेशन इज नॉट गोइंग टू गिव यू बेटर लाइफ, ओके, if your income is not increase in proportion and more than the inflation। Have you got my point? Of course you will get, because you are the future IAS officer, okay। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं देयर इज अ चाइनीज कंपनी, ठीक है, चाइना की कंपनी तो इंडिया में बहुत है। फिर डूइंग बिजनेस इन इंडिया, करती भी बहुत है, रियलमी, रेडमी, वीवो, और भी पता नहीं कितने कितने, टिकटॉक भी आया था किसी ज़माने में। तो देयर इज अ चाइनीज कंपनी डूइंग बिजनेस इन इंडिया, द प्रॉफिट, देखो चाइनीज जो कंपनी है, ये कंपनी क्या होती है, उसके कुछ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, लैंड हो गया, लेबर हो गया, कैपिटल हो गया, इंटरप्रेन्योर्स हो गए। इंटरप्रेन्योर्स मीन आप कह सकते हैं डायरेक्टर्स हो गए, या इसको जो मतलब होल्ड करते हैं, ठीक है, जो चला रहा है कंपनी, तो उसको प्रॉफिट मिलता है, ठीक है। तो सबको ये लेबर को वेजेस मिल जाएंगे, लैंड या रेंट या फिर वो हो जाएगा, कैपिटल पे इंटरेस्ट दिया जाएगा, और जो प्रॉफिट होगा, कह रहे हैं कि अगर प्रॉफिट मेड बाय द कंपनी विल बी पार्ट ऑफ, पहले देखते हैं इंडिया जीडीपी। देखिए, अगर कोई भी कहीं की भी कंपनी हो, मार्स की कंपनी हो, मार्स, इवन दिस इज द कंपनीज बिलोंग फ्रॉम द जुपिटर, डजंट मैटर, it completely doesn't matter if it is producing in the domestic territory of प्यारा भारत, then it is going to the part of GDP। कहीं की भी कंपनी हो, doesn't matter if it is producing in domestic territory of India, it is going to part of GDP of India, not the part of GDP of China or the Jupiter, okay, okay, better, okay। फिर कहें कि चाइना क्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, देखिए द इंटरप्रेन्योर्स, द कंपनी बिलोंग टू द चाइना, यहाँ पर लिख दिया गया है चाइना, एंड इफ द कंपनी हैव रेसिडेंट एंड हैव अ फॉर्मल registration in China, then the profit of the company would be transferred to the China, the resident of the China, and that's why if the resident belong to China, if the company belong to China, then the profit, the transfer profit is also with the part of the gross national product, which doesn't include only the domestic territory, national कहीं भी हो उनको इंक्लूड किया जाएगा। तो वो इंडिया में ही क्यों ना कंपनी है, अगर वो चाइना की कंपनी है और प्रॉफिट चाइना जाता है, तो वो उसके चाइना के ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में इंक्लूड होगा, ठीक है। तो ये दोनों यहाँ पर सही है।
देखिए अगर आपको स्पीड कम लगती हो तो यूट्यूब ने बहुत अच्छा फीचर दिया है, 2x पे कर लीजिए, लेकिन बस आपका कॉक चेष्टा वाली चेष्टा होनी चाहिए। ठीक है, 9th नंबर देखते हैं। करेक्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ग्रॉस नेशनल इनकम एंड ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। मैंने पहले ही बता दिया था, ग्रॉस नेशनल इनकम हो गया, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट हो गया, या जीडीपी, सॉरी हाँ, ग्रॉस नेशनल इनकम या ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट या जीडीपी माइनस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड हो गया, ये तीनों सेम है। मैंने पहले ही बताया था ये तीनों सेम है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं। कह रहे कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ग्रॉस नेशनल इनकम। कह रहे कि ग्रॉस नेशनल इनकम या ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जो होता है इट इंक्लूड द प्रोडक्शन टैक्सेस। मैंने पहले ही बता दिया था कि ग्रॉस नेशनल इनकम जो होते हैं या जीडीपी जो होती है वो प्रोडक्शन टैक्सेस को इंक्लूड करती है, या प्रोडक्शन लेवल पर टैक्सेस को इंक्लूड करती है। फिर कह रहे कि इट इंक्लूड्स द ट्रांसफर पेमेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। देखो, चाहे वो जीडीपी हो चाहे वो जीएनपी हो, दोनों फ्री का धन नहीं एक्सेप्ट करेंगे। ट्रांसफर पेमेंट मतलब भीख का धन, ऐसे मान लो आप, भाई कोई हर्ट मत होना प्लीज। तो आइदर इज द जीडीपी और जीएनपी, द ट्रांसफर पेमेंट विल बी नॉट द पार्ट ऑफ anything in both of this. Okay, so now the country is there and the transfer payment is there. Now we have to find the formula because the academians is there, the economist is there, so they have found the formula where the transfer payment can be added. So they said that if transfer payment are coming in India, so it is going to improve the life of India. Of course it's going to improve, and if this is going to improve the life of India, it is increasing the disposable income of India. So the gross national disposal of income of India increase irrespective of the payments out coming from the net factor or transfer. So gross national disposable of income in India is equal to gross national income plus net factor income from abroad or transfer payment. तो ग्रॉस नेशनल ट्रांसफर पेमेंट प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज इक्वल टू द ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल ऑफ इंडिया। नहीं समझ में आता कोई बात नहीं, बस याद रख लो कि ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम जो होगी वो थोड़ा ज़्यादा होगी नेशनल इनकम। ठीक है, बस ऐसा समझ लो, नहीं तो अगर कुछ नहीं समझ रहा तो इतना ही समझ लो कि हाँ ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट होता है दुनिया में। इकोनॉमिस्ट को नींद नहीं आई थी तो उन्होंने बना दिया था। ठीक है, तो जीएनपी में तो नहीं कवर होगा ये, तो इट इज इंक्लूड प्रोडक्शन टैक्सेस, बिल्कुल प्रोडक्शन टैक्सेस इंक्लूड होते हैं जीएनपी में। ठीक है, इसीलिए मैंने वो फॉर्मूला शायद फिर से मैं आपको दिखा दूँ एक बार। देखिए यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं अब। ठीक है, एक मिनट, आई थिंक गिव मी 1 मिनट, इट इज़ नॉट, आई ऑलरेडी टोल्ड यू, इसका मैंने सोल्यूशन नहीं दिया है बट मैंने समझा दिया उतना, आई थिंक आपको मतलब इनफ होगा समझने के लिए। ठीक है, आपका टाइम भी बच गया, मानो नहीं लिख के रखा था, नहीं तो बिना मतलब में समझाने लगता। हुई शब्द अगर ये नहीं समझ में आएगा तो बताइएगा। ठीक है, वैसे मैंने प्रोडक्शन टैक्सेस पहले भी आपको समझा दिए हैं, बट अगर नहीं समझ में आएगा तो एक बार बता दीजिएगा। करें हुई शब्द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट द इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी। अच्छा, जब हम इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे तो एक गोल्डन रूल से याद कर लेंगे कि हम इन्वेस्टमेंट उसी को कहेंगे जो कैपिटल गुड्स क्रिएट करता हो। फिर कहेंगे कैपिटल गुड्स क्या होता है, हम कैपिटल गुड्स उन्हीं गुड्स को कहेंगे जो, ध्यान से सुनना आप, बिल्कुल लीड लगाए हो तो ईयरफोन पे कान बिल्कुल लगा लो। कैपिटल गुड्स हम उन्हीं गुड्स को कहेंगे जिनसे हम कंज्यूमर गुड्स क्रिएट कर सकें या अदर टाइप ऑफ गुड्स बना सकें या प्रोड्यूस कर सकें या मैन्युफैक्चर कर सकें। हैव यू अंडरस्टूड? यस, यू अंडरस्टूड। ओके, so all the goods are capital goods which are used in the manufacturing of other goods, they call the capital good. And investment, the capital goods investment या capital goods expenditure on the capital goods is a part of investment. Okay, and investment only include where the asset of the company is increasing, asset is increasing, liability is decreasing, then that there is a investment. Capital goods are increasing, समझ रहे हो? चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट कह रहे हैं कि कंजम्पशन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ कंजम्पशन गुड। कंजम्पशन गुड्स का प्रोडक्शन हमारे इन्वेस्टमेंट का पार्ट नहीं होता, याद रखना। इन्वेस्टमेंट इन द कंपनी मीन्स द इंक्रीजिंग इन द कैपिटल्स ऑफ द कंपनी,
capital goods in the companies, manufacturing item, manufacturing machinery increasing in the companies. तो प्रोडक्शन या कंज्यूमरिस्ट गुड्स जो होते हैं, जो खाने वाले गुड्स होते हैं, वो नहीं पार्ट होते हैं इन्वेस्टमेंट के, ठीक है। फिर प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल गुड्स, यस, इन्वेस्टमेंट इन इकोनॉमी इज द प्रोडक्शन और बाइंग ऑफ द कैपिटल गुड्स मतलब होता है। फिर गए प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज, सर्विसेज इज नॉट अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। इफ यू आर प्रोड्यूसिंग द सर्विसेज इट नॉट अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है। सर्विस तो आप कंज्यूम कर लोगे, कुछ नहीं बचेगा। गुड्स आप कंज्यूमरिस्ट कुछ कंज्यूम कर लोगे, कुछ नहीं बचेगा। लेकिन इन्वेस्टमेंट गुड्स क्या होते हैं? वो गुड्स होते हैं जिनसे हम और भी ज़्यादा गुड्स क्रिएट कर सकते हैं। फिर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द शेयर्स, देखिए बाइंग, इफ यू आर बाइंग द शेयर फ्रॉम द कंपनी देन इट्स गोइंग फॉर द इन्वेस्टमेंट। बट इफ यू आर बाइंग सेलिंग बिटवीन राम एंड देयर इज अ श्याम, बहुत फेमस नेम होते थे हमारे ट्रांसलेशन बुक में, ठीक है। There is a Ram and Sam personalities. If they are buying selling between them the shares, company are not getting any money for the investment, and if the company are not getting, then it's not an investment. Okay, so it is also interesting. Only two production of capital goods we call the investment. Okay, understood? Yes, you understood better. 2-3 क्वेश्चन और करते हैं, फिर बाद में करेंगे। स्टार्टिंग है, थोड़ा स्लो चलेगा, तो उसको लेकर आप टेंशन मत लेना, मैं हूँ। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कह रहे हैं कि इम्पोर्टेड कैपिटल इक्विपमेंट, कैपिटल इक्विपमेंट की बात कर रहा है, कैपिटल इक्विपमेंट की बात कर रहा है। मैं फिर से कैपिटल गुड्स की यहाँ पर बात कर रहा है, और कैपिटल गुड्स आर द पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। मैं पहले से बता चुका हूँ। तो कह रहे हैं कि इम्पोर्टेड कैपिटल इक्विपमेंट आर पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन इंडियन इकोनॉमी। यस, आइदर इट्स इम्पोर्टेड और आइदर इट्स डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड, दे आर पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन इंडियन इकोनॉमी। Doesn't matter where the goods are produced, if they are coming in India and becoming the part of industries in India, that machinery would be the investment for the India, investment for the company. Have you got? Yes. So this is going to be true. अब हम ऐसा नहीं कह सकते कि अगर अंबानी जी ने कोई गुड्स इंपोर्ट किया है, कैपिटल गुड्स इंपोर्ट किया, कोई मशीनरी इंपोर्ट की है अमेरिका से, तो वो अंबानी के इन्वेस्टमेंट का पार्ट नहीं है, वो अंबानी जी के इन्वेस्टमेंट का ही पार्ट है। ओके ओके। सेकेंड कह रही है कि कैपिटल गुड्स एक्सपोर्टेड आउट ऑफ इंडिया आर नॉट पार्ट ऑफ इंडियाज इन्वेस्टमेंट। सी दैट, अगर कैपिटल गुड्स जो इंडिया ने इंपोर्ट किया वो इंडिया के इन्वेस्टमेंट का पार्ट है, तो जो एक्सपोर्ट किया वो इंडिया के इन्वेस्टमेंट का पार्ट नहीं होंगे। भाई तुमने कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस किया, वो जीडीपी का पार्ट आपका हो सकता है, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट का पार्ट नहीं होगा। इन्वेस्टमेंट का पार्ट क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो अब आपके पास नहीं है। इन्वेस्टमेंट इज व्हाट? इन्वेस्टमेंट इज समथिंग विच क्रिएट योर एसेट। देयर इज नो क्रिएशन, यू हैव क्रिएटेड द एसेट बट यू सेल दैट। नाउ इट इज नॉट पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, इट इज अ पार्ट ऑफ द कंट्री हु हैज बाय दैट। हैव यू अंडरस्टूड? Yes, better understood. So both are correct in this situation. यहाँ नॉट लिखा है तो कंफ्यूज मत होना। ओके, 12th नंबर देखेंगे। इट इज गोइंग टू लास्ट क्वेश्चन, आई होप। कह रहे हैं कि which of the following statements could be true for high saving rate and economy? High saving rate could be, बोलना मत, could be not must, could be, can be, शुड बी, ये सब क्या पॉसिबिलिटी दिखाते हैं, ये सब क्या पॉसिबिलिटी दिखाते हैं कि हो सकता है। इवन देयर इज ए चांस ऑफ 0.1% दिस इज गोइंग टू बी ट्रू। ओके, बेटर ओके। सो could be true for high saving rate in economy. If there is a high saving rate in economy, what is going to happen? Higher investment. Of course it is going to higher investment. If the economy is based on the high saving, if the household are saving the money in the bank, now bank will give the loan to the Ambani, Adani, Tata, Wipro, and they will call the investment. This is a part of investment, household investment. If there is a saving at household level, they will buy the bond and share, and it will give the investment to the company. This is going to the part of investment. So saving create investment, saving increase investment. Okay, so first is true, first is going to true. फिर सेकंड कहेंगे हायर कंजम्पशन। लिसन,
if there is a high saving of rate, if you are earning 100 rupees and you are saving 90 rupees, and earlier you were saving 50 rupees, now you are saving 90 rupees, just assume that your consumption rate will decrease or increase. Now you have only 10 rupees to consume. Earlier you had a 50 rupees to consume. So if there is a high saving rate, the consumption would decrease. If there is a high saving rate, consumption would decrease. Okay? Higher export. देखिए, if there is a higher investment, higher production of goods and services, which lead to the higher export. So you can say that higher saving lead to the higher investment, lead to the higher export, and it ultimately lead to the GDP growth. Have you got my point? You got in better way. Okay, so thank you so much. I hope I am able to make you understandable. And if not, please do comment and share it in. Yeah. Seriously, I am saying that this channel I have created 1 year before, and after that so many channels have been created. I am not saying something else, but they have a lakhs of subscribers. They have lakhs of subscribers. So I hope you will share. I hope you will like. I hope you will subscribe. And I hope you will motivate me to upload more videos. And as I told you, your prelims is my responsibility. Your prelims is my responsibility. Rest you leave over the God and me, and support me. I will in last 2 months I will cover the whole PYQ. I will give you the concept which are amazing. Seriously. I will provide you the good concept, good PYQ discussion, and good materials. So just support me, please. Okay, so thank you so much for the watching and taking my all bakwas. Okay, Jai Hind, Jai Bharat.